Okay. Shall we study a topic first? Yes, sir, sure. Yes, sir. Okay. I'm connecting to the laptop. Let's study a small topic first. Then after the last topic I taught, and that was, I forgot the topic, adjectives, no? Degrees. Yes, I taught you the degrees, 3 degrees of adjectives, right? So but I forgot to share the list of degrees with you, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So I will share. Let me search. There was a list. Issue. I'm sharing. I'm sharing. Wait. Connecting. Who's typing? It seems somebody's typing Yes, I am on the typing. fast. What are you doing? Today, my report I am sharing to my boss. So you're doing 2 tasks together. No, that's fine. We have done. Just writing the email, last email. That's fine. Yes. Are you also doing job somewhere or what? Yeah, I am doing job. So Mr. Ajay is elder than you or you are elder than him? He is my elder brother. He is your elder brother. And where are you working currently? I'm working Bangalore. My company name is Myriad AI. I'm So working as have a you taken software work developer. from home? You have Sorry? taken work from home? Yeah, I'm work from And what is your work profile? senior software engineer. Okay, are you the software engineer, right? Yeah. Okay. Okay, let's start. First, I'm going to teach a small topic. Then let me share the slide. So I'm sharing. Finally, I found the list of adjectives. I'm sharing this into the group. You can write these all adjectives later into your classwork notebooks. Okay. And please practice these all adjectives, right? Yeah, sure. Write first into your classwork notebook and then after practice it. So the next topic is very heavy.
participle form, but I'm going to skip that one, okay? Because everybody should be present when I teach that topic. Na? I'm teaching one more tense. Future continuous tense we studied last time, if you remember. So I'm going to teach you the future perfect tense. That is not much useful, but yeah, it is little bit useful. Future continuous tense, I guess you already remember, no? मैं कल इस समय पढ़ा रहा होऊंगा तो क्या आएगा? I will be I studying will be studying tomorrow. at say, नहीं पढ़ रहा हूँ, नहीं पढ़ा रहा होगा. I will be teaching tomorrow. ठीक है. I will be, दोबारा बोलो. I will be teaching tomorrow. I will be I will teaching be tomorrow. teaching tomorrow. ठीक है. मैं आपके लिए वेट कर रहा हूँ, कल आना है. बोलो I will be waiting for you. I will be I waiting will for be you. waiting for you. ठीक है. तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस था. अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ना बहुत इजी है. मैं आपको, क्योंकि फ्यूचर हमने अलग पढ़ रखा है. आई टोल्ड यू फ्यूचर विद विल एंड शेल, और परफेक्ट टेंस अलग से पढ़ रखा है. दोनों चीजों को मिलाना, कुछ भी नहीं करना है ना. जैसे दोबारा रिवीजन करवा रहा हूँ सामने. ओके. कोई भी काम फ्यूचर में करूंगा, फ्यूचर के लिए हमने पढ़ा था विल. ठीक है. मैं किताब प्रकाशित करूंगा, बोलो आई विल पब्लिश अ न्यू बुक. I will publish a new book. ठीक है. तो फ्यूचर के लिए विल यूज करते हैं, सबको पता है. और कोई भी काम कंटिन्यूस चलते चलते खत्म हो जाता है. जैसे मैंने किताब लिख ली है, तो आई हैव और उसके साथ एक्शन की कौन सी I will form? publish a new book. Third form. थर्ड फॉर्म. याद है ना. थर्ड पर्सन है तो हैज लगता है. मैंने कोई काम कर लिया, मैंने किताब लिख ली, तो पूरा सेंटेंस क्या होगा? बोलो आई हैव राइट अ बुक, आई हैव रिटन अ बुक. I have written a book. ठीक है. ये पहले पढ़ा हुआ है. तो ये परफेक्ट टेंस है. अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ना, तो इसके आगे परफेक्ट टेंस के आगे यहाँ पे विल लगा दो. पहले हिंदी में सेंटेंस समझना. जैसे अभी मैं जयपुर निकल रहा हूँ, सुबह तक तो मैं जयपुर पहुंच चुका हूँ. भविष्य में कोई काम खत्म होना बताना. अगले महीने तो मैं अपनी किताब लिख चुका हूँ, अगले महीने अपनी किताब प्रकाशित कर चुका हूँ. राइट. फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर टाइम लिमिट पे कोई काम खत्म होना बता रहे, तो फ्यूचर के लिए वो विल आएगा. ठीक है. फ्यूचर के लिए विल आएगा. क्या किया समझ में? विल और हैव थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस को मैंने कनेक्ट कर दिया. ठीक है. तो बोलो मैं सुबह तक जयपुर पहुंच चुका हूँ, क्या सेंटेंस बोलेगा? बोलो आई विल हैव रीच्ड. I will have reached Jaipur. एवरीबॉडी प्लीज रिपीट. I will have reached Jaipur. I will have reached Jaipur बाय टुमारो मॉर्निंग. by tomorrow By morning tomorrow. at AM. ठीक है. मान लीजिए कोई दूसरे सर किताब लिख रहे हैं, तो आप बोल रहे हो अरे सर अगले महीने तो वो किताब पब्लिश कर चुके होंगे, तो ही विल के साथ हैज मत लगा देना. क्यों? क्योंकि मेन प्रभाव जो है, इफेक्ट है, वो विल का है ना. तो विल मॉडल के साथ आई यू ही शी सिंगुलर प्लूरल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. आगे तो क्या बोलोगे? बोलो ही विल हैव पब्लिश्ड अ बुक. He He will will have have He will have published published a book next week. नेक्स्ट मंथ. क्वेश्चन पूछना तो विल आगे लाओ. क्या वो अगले महीने तक किताब प्रकाशित कर चुके होंगे? Will he have published a book will he next week? have published published next month. ठीक है. ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस से दोनों अलग अलग पढ़ते हैं. पहले याद करो, स्क्रीन पे देखिए, है ना. मैं उसको लंबे समय से जानता हूँ, ये ध्यान रखना है ना. फोर और सिंस का इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आता है ना. हम बोलते हैं ना मैं उसको लंबे समय से जानता हूँ, तो ये परफेक्ट टेंस में आएगा, ध्यान रखना. तो नो मतलब जानना. नो की थर्ड फॉर्म. पहले नो की तीनों फॉर्म बोलिए. No. बोलो नो न्यू नॉन. No new non. No new known. ठीक है. अब पूरा सेंटेंस बोलना है कि मैं उसे लंबे समय से जानता हूँ. No new. तो बोलो आई हैव नोन हिम फॉर लॉन्ग टाइम. I have known I him. have known him for a long time. उसने सम मतलब मैथमेटिक्स का सम देते हैं ना, उसने सॉल्व कर लिया है. तो क्या आएगा? बोलो सेंटेंस बोलो. He has He solved has some. He has solved. solved some. ठीक है. नेक्स्ट. वे लोग घर वापस रिटर्न हो गए, तुम यहाँ बैठे हो, बोलो दे हैव रिटर्न्ड बैक. They have returned back. They have returned back.
तो कोई ध्यान से देखिए, आई, ही, शी, दे, इट सबके साथ विल लगेगा और इसके साथ कोई एस सी एस नहीं लगता मॉडल के साथ, हैव थर्ड फॉर्म ही आएगा, हैज थर्ड फॉर्म बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, चलिए। मेरे पापा ऑफिस चले गए होंगे, ले चल तेरे पापा से मिलते। नहीं, मेरे पापा तो ऑफिस चले गए होंगे या जा चुके होंगे, है ना। My father will have gone My to father will go to office. Fix. नेक्स्ट, मम्मी कई बार रास्ते में होता है ना, ये चल रहे भूख लग रही है यार, मम्मी ने खाना बना दिया होगा। देखो बना दिया होगा ये बोलचाल की भाषा है। शुद्ध हिंदी, मम्मी खाना बना चुकी होगी। बोलिए। Mama will Mama have will have prepared food. prepared food. ठीक है, सर ने क्लास शुरू कर दी होगी। आप जैसे मान लीजिए लेट हो गए आप, है ना, 8:45 बज गए, आप क्या बोलोगे? अरे यार सर क्लास, सर ने स्टार्ट क्लास कर दी, शुरू कर दी होगी, या सर क्लास स्टार्ट कर चुके होंगे। तो Sir will have started Sir will class. have start the class. वेरी गुड। स्टार्ट में थर्ड फॉर्म आएगा ना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। Started class. दोबारा बोलो, सर विल हैव स्टार्टेड क्लास। Sir will Sir have will started have class. started class. और आपका भाई आपको पूछ रहा है क्या सर क्लास स्टार्ट कर चुके होंगे, कि विल आगे लाओ। Will he have started class? Will he have Will he have started? मान लीजिए कार रिपेयर करने के लिए रखी मैकेनिक के, दोपहर तक आप क्या बोलोगे? ले चल रहे, मैकेनिक ने कार रिपेयर कर दी होगी, ये बोलचाल की भाषा। शुद्ध हिंदी होगी, मैकेनिक बाइक रिपेयर कर चुके होंगे। क्या बोलोगे? Mechanic will Mechanic have will have repaired repaired car. car. रिपेयर अगेन बोलो, मैकेनिक विल हैव रिपेयर्ड कार। Mechanic Mechanic will will have have repaired repaired car. car. और क्वेश्चन पूछना, क्या मैकेनिक कार रिपेयर कर चुका होगा, तो विल आगे लाओ। Will mechanic have repaired car? have repaired car. ठीक है, ये खुद को बनाना है सेंटेंस, क्वेश्चन नहीं यार, अभी तो 2 घंटे हुए। मेरे ख्याल से मैकेनिक बाइक रिपेयर नहीं कर चुका होगा, तो विल का वांट करके बोलो। Mechanic won't have repaired car. Have repaired car. अंडरस्टैंडेबल एवरीबॉडी? Yes, sir. कल सुबह तक तो हम वहां पहुंच चुके होंगे। बोलो वी विल, अब आगे टाइम लिमिट डालना। बोलो वी विल हैव रीच्ड देयर टुमारो मॉर्निंग। We will have reached there tomorrow morning. Morning 8 o'clock. अच्छा, बारिश शुरू हो गई होगी वहां मुंबई में, तो बारिश शुरू हो गई होगी, ऐसे भविष्यवाणी कर रहे हैं। It will have started raining. It will have started raining. गुड, हैज मत लगा देना ना। ले, कई बार मार्केट में बच्चे घर पहुंच चुके होंगे या बच्चे घर आ गए होंगे। Children will have come at home. अंडरस्टैंडेबल और डिफिकल्ट? Understandable. अरे यार उसको दोस्त या आजकल यहाँ कैसे दिख रहा है? अरे वो तो नौकरी छोड़ चुका होगा, या उसने नौकरी छोड़ दी होगी। He will have left his He job. will have left his job. प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। I have taken a screenshot. But he has taken। Yes, sir. Yes, sir. अगले अक्टूबर तक उसका प्रमोशन हो गया होगा। हम बोलते हैं ना, हिंदी में ही बोलते हैं हो गया, अगले हो जाएगा, हो गया होगा, हो चुका होगा। By next October, he next- will By have next October, he will have received his Yes, job, promotion. his promotion. इस महीने के अंत तक आप इंग्लिश सीख ली होगी या सीख चुके होंगे। by end of this month, you will have learned English. क्वेश्चन, क्या उसकी ग्रेजुएशन पूरी हो गई होगी? जैसे यहाँ बैठे हैं, कोई दोस्त पहले मिला था, भाई बहन बोले क्या उसकी ग्रेजुएशन पूरी, क्या वो लड़की ग्रेजुएशन पूरी कर चुकी होगी या कर ली होगी? Will she have graduated? Will she have graduated?
Will she have Will graduated? graduate? Will हाँ ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी हूँ She will have बोलो graduated. She, शी विल हैव ग्रेजुएटेड बोलो she will have He graduated. will have graduated. पूरा क्लियर बोलो शी विल हैव ग्रेजुएटेड She will have He will have graduated. graduated. नहीं नहीं उन्होंने अभी तक ग्रेजुएट नहीं हुई पूरी नहीं हुई She will No, not have he will not graduated. have graduated. Yes, she won't have graduated. यार क्या उनको न्यूज मिल गई होगी अभी तक कि नहीं मिली होगी Will they have got news? He doesn't vote yes. have got news? विल दे हैव गॉट न्यूज हाँ उनको न्यूज मिल चुकी होगी बोलो They will have They got will news. have got news. नहीं 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 अभी तक उनको न्यूज नहीं मिल चुकी होगी या नहीं मिली होगी They won't have got news. They will not have got news. ठीक है टेक दिन सॉरी वेट 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 चेक क्या वो सर होमवर्क चेक कर चुके होंगे ऊपर फॉर्मूला देखो Will they ऐसे have बेटे- Will checked he have homework? checked homework? चलिए पूछे इसको 3 टाइम्स खुशी 3 आप पूछिए 3 टाइम्स सब लोग बोलेंगे ही विल हैव चेक्ड होमवर्क तीसरी बार में ही वांट Will he have checked homework? Yes, he will have checked homework. He will have checked homework. Will he have checked homework? Yes, he will have checked homework. He will check. Will he have checked homework? No, No. she won't have checked homework. Okay. वो ऑफिसर क्या वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर चुका होगा विल ही हैव वेरीफाई की तरफ हम वेरीफाइड या रतनलाल जी यू आस्क Will he have verified document? Yes, he will have verified Yes, he will document. have verified document. Yes, he will have verified. Will he have verified document? Yes, he will have verified Yes, he documents. Have document. He will have verified document. Will he have verified document? No, he won't have No, verified he document. won't have verified document. Okay. अब इसके ऊपर खुद सेंटेंस बनाओगे आप बहुत सारे टेक द स्क्रीनशॉट फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्लियर Yes, sir. और एनी डिफिकल्टी No, sir. इंडिया मैच जीत चुकी होगी मैं तो यहाँ बैठा हूँ मैं मैच नहीं देख रहा हूँ अभी लेकिन इंडिया मैच जीत चुकी होगी क्या बनेगा India, India will have win win won the match. the match. Win, won the match. विन Won द the मैच या वॉन द मैच Won the match. Won the match. India will have won the ठीक है match. ठीक है कुछ सेंटेंस आप खुद बनाइएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस कम काम में आता है लेकिन काम में आता है हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है एंड एवरीबॉडी हैज टू डू होमवर्क है ना चलिए नाउ वी विल कंटिन्यू द डिबेट नॉट स्टार्ट इट वाज ऑलरेडी स्टार्टेड लास्ट टॉपिक वाज sorry what topic was going on Indian culture Indian culture versus Western culture. versus Western culture.
So who would like to initiate now today? Ratanlal ji already raised hand. So I think I should invite first Ratanlal ji. Okay. And then after Khushi be ready. And today, beta, you also be ready. What's your name? Madhendra? Mahendra. Yes, beta. You also be ready to speak on Indian Sir, culture I'm versus ready. West. Ah, good. Yes. All Khushi, over to you. Start. So, yes, sir. Sorry. No.